Manisa, kindly confirm if the voice is audible. Thank you, sir.
Evening, everyone. Can you please confirm, am I audible, perfectly audible to each of you? Evening, Garima. Thank you, bete. Chalo. So, beta, आज के सेशन में what I'll be focusing is on reasoning section, and that too perfectly from the point of view of pre only. So, would not be focusing on types of questions that would occur in mains, either of clerical or PO. तो मेरा बेटा बेसिक फोकस रहेगा आपको ये समझाना है कि हम प्री को किस तरह से टारगेट करें, because if we are preparing for clerical we have still 1 month to go for clerical, and few of you probably has filled up PO again, fine, which probably would occur in the month of January, so we have 2 months for preparation. अब बच्चे जब हम प्री की बात करते हैं, so we understand obviously we have 3 sections, quantitative ability, reasoning and English, and we have to obviously gradually prepare for all the 3 sections well. बट अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, अगर क्लेरिकल को आप लोग देख रहे हो, डेफिनेटली द पेपर वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शंस. सो तेजब आई वुड नॉट बी committing on that part, but I'll be taking the English and Hindi as a mix. Fine. So definitely I'll be talking about most of the things in English, but then definitely for certain purposes I need to speak in Hindi as well, but I'll definitely would take your point. So what I was explaining initially was, see, we need to score approximately 70 plus as an overall cutoff for when we are targeting banking clerical, specifically IBPS clerical or SPS clerical. The cutoffs of most of the states would normally cross 70. And what I personally believe, if you need to cross 70, the maximum amount of score has to come from reasoning. So ideally, if I look at my students who have been preparing from us, have been into touch and have been preparing all the topics well, was scoring on an average of 27 to 32 score when it comes to only reasoning in 20 minutes. So we need to work on this part only, how to go about scoring in higher stuff in reasoning, because reasoning के section में मेरे पास speed बन जाएगी, I'll be able to score well. So सबसे पहले, before I'll start with types of questions, what needs to be looked into, how to go about preparation and all that, let's have a quick look on what kind of section it is all about, क्या क्या आता है, what has to be prepared. So if I'll go by the journal paper, my paper basically includes a few things. Obviously, what I have told you, there has to be 35 questions to be attempted in 20 minutes. अब अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ पेपर को ध्यान से देखो, तो मेरे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, the maximum questions are coming from puzzles. So there has to be almost 20 and at times 25 questions out of puzzles only. Out of these 35 questions, the majority has to come from puzzles. अब ये puzzles किस तरह की होती हैं? Would include questions on sitting arrangements, would include questions on combination based, would be including questions that would be talking about some kind of arrangement, could be some schedulings and all that. Normally जो sets आ रहे हैं when it comes to specifically banking as an examination, most of the time you'll have sets in 5 questions. So instead of coming up with a single question, puzzles हमेशा 5 questions के set में आती है. So you'll have 4 or 5 sets comprising of 5 questions each, so that would gonna give me the maximum contribution. Apart from that, कुछ कॉमन चीजें जो हमेशा आ रही हैं, एक बच्चे हमारे पास अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज कॉमनली आ रही हैं. आई विल बी गिविंग यू सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ अबाउट टारगेटिंग अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, क्या होती हैं, क्या करना चाहिए. देन देयर वुड बी सम हियर एंड देयर क्वेश्चंस ऑन कोडिंग डिकोडिंग. Definitely there are certain parts of coding decoding which definitely would be learned into. We need to understand certain patterns. They are coming up with new patterns every time, so we need to understand what kind of pattern they can look forward for. But if I look down to the most scoring section when it comes to IBPS PO or clerical pre-examination, the most scoring part would be puzzles. Alphanumerical series is probably the easiest of all. So when I look down to the examinations, if I'm getting 4 or 5 puzzles, 3 puzzles would normally be very easy ones, very easy attempts. Coding decoding, I would not say all of the questions would not be very easy. There would be certain questions which are pretty straight. There could be certain questions which would have very typical coding, so I would not definitely recommend to do all coding questions in these 20 minutes. But definitely alphanumeric series has to be one that has to be done definitely. Syllogisms when it comes to pre normally comes in the very easy format. Deductive logic कुछ लोग बोलते हैं, syllogisms बोलते हैं, logical deductions you can go and speak. Logical deductions में questions are all x are y, some y's are x. Again when it comes to pre, this is one area which is very scoring and very easy. So कुछ common चीजें would always occur, so need to prepare them very well. When it says miscellaneous, you can expect a question on input output. You can expect a question on directions.
At times you can have a question on something like diagrammatical puzzles. Fine. You can expect some questions here and there on eligibility criteria and something like that. But because you've been given only 20 minutes and need to quickly go and decide what to attempt and what not to, you cannot waste time anywhere. So you have to gradually go by every question, look in the kind of type, whether you are clear or not. Hit and trial, we don't have time for that. So needs to understand what are the areas that we really need to work on and get the answer, and probably would be scoring 27, 28 in reasoning. Fine. Almost the same pattern is going to happen when it comes to PO. So because we still are expecting PO, most of you would be appearing for a PO examination in the month of January. So the number of questions would not vary much. When it says puzzles, would be again 15 to 20 puzzles comprising of 3 or 4 sets. Again, we have C, coding, decoding. You have questions from blood relations. You have questions from syllogisms. Again, miscellaneous, which includes directions. That could be including input, output. That could be including some diagrammatical puzzles. Here and there could be anything like that. So in terms of preparation, I would say pre would not make much of a difference. Would be almost same. Try to get a very good comfort zone on this puzzle first. This is my first area that we really have to practice a lot. We need to understand what areas, what are the probably the mistakes that we are gradually doing. I've been explaining in the previous classes as well. When it comes to puzzles, see, the idea is not कि तुक्का लग जाएगा. There's nothing like guesswork over there. There has to be a certain approach towards solving this question also. So in first 30 seconds, when I'm reading a puzzle question on puzzles, we need to understand what kind of format it has to follow. Need to work on your mistakes and then come up with your answers. Fine. So before I start preparation, I definitely want to look down to your questions, because what I'll be working on today is how to target about questions, what to take care, what not to. But anyways, you want to ask me anything on journal preparation strategy and something like that? अगर मैं अपनी preparation strategy को देखूं, if I have to look down to that, my advice would be, see guys, there cannot be any shortcut to anything. So please be prepared on one aspect. Need to make clear notes and start identifying topics. Specifically, when I says coding, decoding, I says we have 3 to 5 questions in clerical as well as PO. Now, how to go about preparing coding and decoding? That would be one fundamental. Shayad guess lag jayega? No, there could not be the philosophy for the preparation. We have to understand the basic kind of patterns that would follow in coding, decoding. So, kuch basic se patterns hai which we'll always teach you in the classes. Need to make a good note of that. If I look down, there would be approximately 15 to 20 patterns that would be repeated every time. So what does that mean? If I can work for 4 to 5 hours on coding, attend a class for 2 hours, definitely your faculty would be explaining you all the patterns that could probably occur over there. Note them, apply them, practice them, then start taking topic tests. So if I've been attending my sessions beforehand also, in every session I was focusing on your preparation in the sense of basic. Understand the basics. So whether it's a quant or reasoning, every topic has some basic interpretations. वो हमें करनी है. You have to attend classes, you have to follow the notes and make your own notes for them. कुछ common patterns है. We need to look down for this. ये मुझे याद रखना है. This is something I would make sure कि मुझे ये नहीं भूलना चाहिए. फिर I always say application. Application in the sense, मैं अपनी books को, अपने worksheets को follow कर रहा हूँ. मैंने patterns note कर लिए. I've already understood, okay, this is the expected patterns that would occur in the examination. फिर मैं हमेशा उसकी practice करूंगा अपनी worksheets के साथ, अपनी books के साथ जो हमें मिली है. Fine. Then comes the nurture part. Then nurture for me is you are taking topic test and sectional test. अब मैंने coding के कुछ worksheets को solve कर ली, but अब मैं कुछ online test देख के देखूंगा कि क्या मैं उस time limit में उसको कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. Puzzles हैं, मेरे को एक puzzle का format समझ आ गए हैं, मैंने combination based puzzle समझ ली है, sitting arrangement based puzzle समझ ली है, देख लिया है inside outside वाली problem को कैसे करना है. But then problem ये है कि क्या जब मैं पेपर में बैठूंगा तो उसको टाइम लिमिट में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग टॉपिक टेस्ट करो बच्चे. वी कीप फोकसिंग ऑन दिस एवरी टाइम. एंड टॉपिक टेस्ट which is online topic test that has a timer involved in it. Make sure that you subscribe to an online account. Take it. अगर आप कर लॉन्चर के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आपको सब कुछ मिल रहा है.
आपको क्लासेस मिल रही हैं जिसमें आपको वर्कशीट्स मिल रही हैं, आपको ई बुक्स मिल रही हैं. Definitely you can do your applications over there, and then definitely your online account where you can nurture your topics. And then come the last stage, kickoff, which always would stress on your mocks. So the strategy of preparation would practically not differ when it comes to quant, reasoning or English, would almost remain same. हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना है. Comfortable? Now probably these things have been talked to you in the previous sessions also, so I'm not working much on them. फिलहाल के लिए बेटे what I definitely moving is towards what kind of questions would be expecting in your pre-examination. But before I'll get down to that question, anybody who needs to ask me anything, let's make it a more interactive session so that you can ask me questions. I'll be more than happy to answer them. Any question from your side, guys? Okay, so expecting most of you have been attending the sessions before also, so have been already going through all this stuffs. Fine. So let's go down to certain basic things. What I'll be starting today is with some very basic questions. Definitely, beta, I'll have to spend most of my time today on solving puzzles only, because I understand that is the area where most of the people are having problem. So definitely, I'll be spending approximately an hour on puzzles only. Tips to solve them, how to go about doing it and doing not some. Okay. But before I'll start with them, I wanted to test few things, because when it comes to pre specifically, beta, see what happens in pre is we need to be very accurate with our stuffs. Chandan, your question is SBI PO, so I would say your preparation for SBI PO or IBPS PO is almost same when it comes to pre at least. Mains में जाके definitely quantitative section में फर्क आता है because they have more data analysis based questions. But in terms of pre, definitely the SBI PO and IBPS PO would almost be same. So when you have to crack your paper in the first attempt or second attempt, I personally would believe would not make much of a difference. You need to be prepared and you need to be probably well prepared with your topic. फंडा क्या है बच्चे, देखो मेरे पास वहां पे हिट एंड ट्रायल का टाइम नहीं है. सी अंडरस्टैंड द आइडिया, ओनली 20 मिनट्स. नाउ द प्रॉब्लम इज विद दिस 20 मिनट्स, अगर मेरे को पास 20 मिनट्स हैं तो मैं हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकता. आई हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस विद माय स्टफ्स. व्हाट आई एम टारगेटिंग इज 27 to 30 स्कोर इन दीस 20 मिनट्स. सो हमारे को वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरे को टॉपिक क्लियरली आइडेंटिफाइड है और मैं उसको फटाफट से सॉल्व कर रहा हूं इन अ क्लिक ऑफ सेकंड. फाइन. सो अब मैं कुछ वो टिप्स और ट्रिक्स पे ही काम करने वाला हूं कि हम लोगों को किन चीजों को ध्यान रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लुक्ड एट मोस्ट ऑफ द सेक्शन एज रीजनिंग सेक्शन, दिस वुड बी बेस्ड ऑन योर वर्बल रीजनिंग. अच्छा, व्हाट इज वर्बल रीजनिंग? एनीबॉडी विल टेल मी? आई यूज द वर्ड वर्बल रीजनिंग. द मोस्ट ऑफ माय सेक्शन इज वर्बल रीजनिंग सेक्शन. सो व्हेन इट सेज वर्बल रीजनिंग कितनी क्या होती है? एनीबॉडी? डेफिनेटली पन्ना विल डू दैट. बट फिलहाल मुझे बताएगा हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो वर्बल रीजनिंग है. वर्बल रीजनिंग का मतलब लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग है. काफी टाइम पहले अगर मैं चले जाऊं, फिर गो बैक 4-5 इयर्स बैक, बैंकिंग में मेरे पास बहुत सारे विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, नंबर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते थे. आज की डेट में ऐसा नहीं है. मैं 80-90% क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग. लैंग्वेजेस के छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं, हम लोग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ चीजों को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेरा प्री खराब हो जाता है. मैं मेंस की अभी बात नहीं कर रहा हूं, उसका डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा होता है. बट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं जिसको ध्यान में रखना है. ठीक है. सो मैं कुछ बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो पेपर में आएंगे, बट आई वांटेड टू लेट यू अंडरस्टैंड कि हमारे कुछ बेसिक वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन शायद खराब होती है, जिसकी वजह से हमारे आंसर्स गलत होते हैं. स्पेसिफिकली मेरे पास जो पजल्स होती हैं, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक सीरीज आती हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, उसमें मैं ऐसी मिस्टेक्स करता हूं. ठीक है. So I want a good interaction from your side. I'll be asking you few questions which would be very easy, very basic, but I want your response in 5 seconds. Fine? चलो थोड़ा सा क्विज सा खेलते हैं. Let's try to see हम लोग कितना जानते हैं, हम किस तरह से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं. Fine? Again I am saying बेटे my answers should come within 5 seconds for every question. So my first thing, how would you tell what would be the day that is 2 days after Wednesday? I should not take more than 5 seconds even in typing. So two answers: Saturday, Friday.
The day that is 2 days after Wednesday. So I'm getting two different responses. Friday, Saturday, Friday, Saturday, Friday, Saturday. Again different responses every time. So एक random आ रहा है, देखो बेटे कोई तो गलत है. Rethink and retype your answers. I've got 50% Saturdays and 50% Fridays. A quick response. Friday or Saturday, final decision. Okay, my first mistake. No Shubha Lakshmi, no Lawrence, no Priya. The answer is not Saturday. The right answer is Friday. Start understanding your basic mistakes. हम गलतियां करते कहाँ पे हैं? जब आप puzzles बना रहे हो, होता क्या है बच्चे, आपके पास you have got 7-8 statements to be followed by 5 questions. आप कोई एक word गलत पढ़ लेते हो और आपका सारा का सारा आंसर गलत हो जाता है बेटे. You end up spending 4-5 minutes. आपका पजल गलत हो जाता है, आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, आप प्रेशर में आ जाते हो, सब पेपर खराब हो जाता है. 5 क्वेश्चन गलत करने का मतलब यू आर लूजिंग 6.25 मार्क्स. द गेम इज ओवर द मोमेंट यू आर डूइंग दैट स्टफ. ठीक है, सो कुछ बेसिक वर्ड्स को ध्यान में समझो. व्हेन आई एम सेइंग 2 days आफ्टर वेडनेसडे, अब बेसिक पॉइंट है बेटे, देखो आज सैटरडे है. व्हेन इट सेज अ डे आफ्टर टुमारो, ये आई होप सबको पता होगा. आज सैटरडे है, व्हाट वुड बी अ डे आफ्टर टुमारो? इसका आंसर क्या होगा? आज हमें पता है सैटरडे है, सो व्हाट वुड बी अ डे आफ्टर टुमारो? मंडे. ठीक है, इतनी इंग्लिश हम सबको आती होगी. हम आने वाले परसों को क्या बोलते हैं? अ डे आफ्टर टुमारो. सो वो मंडे है. सो अ डे आफ्टर टुमारो इज मंडे. सो व्हाट वुड बी अ डे आफ्टर टुडे? बेटे व्हाट वुड बी अ डे आफ्टर टुडे? संडे. गरिमा इज परफेक्ट. ठीक है, चंदन भी परफेक्ट. ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे. सो अगर बेटे अ डे आफ्टर टुडे संडे है, मतलब जब मैंने अ डे वन डे बोला तो वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे था. परफेक्ट. सो अगर मैंने यहाँ पे 2 days बोला होता तो 2 days आफ्टर टुडे वुड हैव बीन मंडे. सो जब हम बोलते हैं 2 दिन बाद में, तो वो सेकंड डे होता है, उसके बीच में 2 दिन नहीं होते हैं बेटे. काफी लोगों ने सैटरडे आंसर किया था, which was not right. Please make sure 2 days after a certain day would be the second day in itself. I hope सबको ये पॉइंट समझ आया. आज की क्लास के बाद आप ऐसी गलतियां नहीं करोगे बेटे. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं. और कोई भी टॉपिक टेस्ट दे रहे हो, कोई भी वर्कशीट कर रहे हो, प्लीज एक हैबिट डेवलप करो कि आप कोई भी वर्ड अगर गलत इंटरप्रेट करते हो तो उसको नोट करते हो. हमेशा रीजनिंग इंप्रूव करने का बेस्ट मेथड क्या है? अपनी गलतियों को नोटिस करना और पैटर्न्स को समझना. ठीक है, डेफिनेटली व्हेन यू आर इन योर क्लासेस विल कीप फोकसिंग ऑन दीस वर्ड्स एंड लेट यू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ विद आवर एक्सपीरियंस वी नोस आप कहां पे गलती करोगे. फाइन. इसमें एक छोटा सा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं बेटे. देखो, आपको अगर 2 days आफ्टर वेडनेसडे का होता तो फ्राइडे है. हैड आई वुड से देयर हैज टू बी 2 days बिटवीन वेडनेसडे एंड सैटरडे. That has to be 2 days between Wednesday and Saturday. ठीक है, सैटरडे आंसर कब होता है? Had I would have used the word between. Comfortable everybody? Good. चलो, assuming ये पॉइंट सबको छोटा सा समझ आया, एक और जल्दी से आंसर करेंगे. Sorry, there was some scrapping over there, but still, if you need to find in the English letter series which letter is 20th from the last, what would you do? 5 seconds में आंसर चाहिए मुझे. In the normal English letter series which starts from A and ends up at Z, which letter is 20th from the last? Garima says G. T, V, G, T, T, G, okay. Akanksha, Ankit, what I've said is 20th from the last. Good Priya, good Chandan, good Kamal. Now I'm getting the right answers. Good Kamal. Beta, the right answer has to be G. So need to focus on some words. What I used is 20th from the last. पीछे से बेटे 20th चाहिए, आगे से 20th नहीं चाहिए. ठीक है, अब जब मैं कहता हूं पीछे से कोई चीज 20th है, so better way of understanding that would be we have got total of 26 letters. अगर वो पीछे से 20th है, so there has to be 6 letters that would be ahead of that letter. उससे पहले 6 लेटर और होंगे. So what we need to understand is there has to be 6 letters before it, so its number has to be 7. अगेन बेटे लैंग्वेज को ध्यान से समझेंगे.
मैंने ऐसा नहीं कहा देयर हैज टू बी 20 लेटर्स बिफोर इट और आफ्टर इट. व्हाट आई सेड वाज ही इटसेल्फ हैज टू बी 20th फ्रॉम द लास्ट. तो अगर वो लेटर पीछे से खुद 20th है तो उसके पहले कितने लेटर्स होंगे? दैट हैज टू बी 26 माइनस 20. उससे पहले 6 लेटर और होने चाहिए. मतलब उसकी पोजीशन कौन सी है? 7th. और मेरा 7th लेटर जो अल्फाबेटिकल सीरीज में है दैट हैज टू बी जी. कंफर्टेबल? सो कुछ लोगों ने आंसर्स गलत दिए थे बेटे. अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट. टोटल 26 लेटर्स में से अगर कोई पीछे से दिया हुआ है, so the better idea would be that something has been defined from the back, from the last. अगर कोई चीज को पीछे से डिफाइन किया हो तो what we can use as a fundamental is total minus x plus 1, where x is the position from back. तो छोटे छोटे रूल्स हैं जो हमने समझने होते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशन बुक वेरी स्ट्रांग. गोपाल वही बेटे मैं समझा रहा हूं. f जो है वो 6th लेटर है. अच्छा चलो गोपाल आपका आंसर करते हैं. यू विल प्रोबेबली वुड आंसर मी. परफेक्ट है. Gopal, which is the first letter from the last? Gopal, what is the first letter from the last? Z itself, na? Would not be 26 minus 1, that would be 25. I hope my point is clear. वो खुद 26 minus 1 नहीं है, वो 26 minus 1 plus 1 है. Comfortable? So जब आप कहते हो something has to be 20th from the last, अगर कोई चीज पीछे से x पोजीशन पे है तो उसकी आगे से जो पोजीशन होगी यू कैन नॉट जर्नलाइज हैज टू बी टोटल माइनस x प्लस 1. सो 20th फ्रॉम द लास्ट हैज टू बी 26 minus 20 plus 1. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज नाउ द 7th लेटर एंड दिस 7th लेटर हैज टू बी g. गुड. चलो जल्दी से नेक्स्ट आंसर करो मुझे. How many numbers are between 23 and 75? See, this would not be coming like this only in the paper, but this is going to be the basic fundamental that we have to work for reasoning. Pre में time नहीं है बच्चे calculation का. Ankit says 51, rest all. Ankit and Anjali says 51, Dimple says 52, Garima says 52, Karina says 51. So again different responses. A mix of 51 and 52. आंसर में बेटे गलती तो देखो एक नंबर की हुई होनी है, उससे ज्यादा तो होनी भी नहीं है ना. बट मुझे वो एक नंबर की गलती मेरा 1.25 मार्क्स लूज कराती है. वैष्णवी सेज 51. अगेन सुबह लक्ष्मी प्रिया नो बेटे. द राइट आंसर हैज टू बी 51. अगेन लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल. हम देखो कहां पे गलतियां कर रहे हैं बच्चे. हमें इसी वजह से पेपर क्लियर नहीं होता है. हम बहुत बड़ी कंप्लेन करते हैं यार मैं तो पेपर बहुत अच्छा करके आया था, स्कोर पता नहीं क्यों नहीं आया. डेफिनेटली वुड एक्सप्लेन चंदन. बट प्लीज बेटे देखो उनकी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि उन्होंने आपको स्कोर कम दिया. आप पेपर में गलतियां करके आए हो. दैट इज व्हाई यू हैव नॉट क्लियर द पेपर. हम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं. अब मेरा पॉइंट समझो. अगर सपोज मैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8 और 9 लिख दूं, मुझे बताओ 5 और 9 के बीच में कितने नंबर है? 5 और 9 के बीच में कितने नंबर है? 3 नंबर है ना. दिख रहा है हमें 6, 7 एंड 8. छोटा हो तो बेटा आराम से सॉल्व हो जाता है. अब पॉइंट समझो. जब आप 75 माइनस 23 करते हो इसका क्या मतलब है? 75 जो है वो 23 से 52 प्लेसेस आगे है. आई रिपीट माय वर्ड्स, उसको ध्यान से समझना है. अगर मैं 5 और 9 की बात करूं तो 9 माइनस 5 क्या सिग्निफाई कर रहा है? 9 इज 4 प्लेसेस आफ्टर 5. परफेक्ट है. दो चीजों का जब आप डिफरेंस लेते हो ना बेटे तो उसमें आप 75 को इंक्लूड करते हो. एक बेसिक मैथ्स का रूल होता है. जब आप 75 माइनस 23 बोलते हो यू आर इंक्लूडिंग 75. जैसे यहाँ पे 9 माइनस 5 करोगे तो यू विल बी इंक्लूडिंग 6, 7, 8 एंड 9. दैट वुड बी 4. So when you subtract something, you include the last number in itself. Comfortable बच्चे? तो मैं अगर पूछता 75 is how many places away from 23, my answer should have been 52. But अगर मैं बोल रहा हूं how many numbers are between 75 and 23, please make sure the right answer has to be 52 minus 1, which is 51. बेटे ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हमने ध्यान में रखने, ये हमारे क्वेश्चंस को गलत कराएंगे. ठीक है. सो अगर ये कई बार पजल्स में कैसे आता है, डेज दिए होते हैं
तो मुझे जल्दी से बताओगे हाउ मेनी डेज आर बिटवीन 5th एंड 25th? हाउ मेनी डेज आर बिटवीन 5th एंड 25th ऑफ द सेम मंथ? Good Gauri, good Karina, good Kamal. So I hope the point is very clear. 25 minus 5 20 है, वो 20 places आगे है, उसमें 25th included है. तो how many days between them has to be 90. Comfortable? इसी तरह से बेटे कई बार ये फ्लोर्स में आ जाता है, मैं भी आपको आगे पजल्स दूंगा, ठीक है? कई बार ऐसे होता है एक बिल्डिंग में 12 फ्लोर्स हैं. So if there are 12 floors in a building, how many floors are between 2 and 10? How many floors are between 2 and 10? 7. Vaishnavi, Karina, everybody is okay with the point. Comfortable? So अगली बार ये गलती नहीं करनी है. Need to focus on the word के word away दिया हुआ है कि word between दिया हुआ है. ठीक है? पहले से भी अब उसको लिंक कर सकते हो. मैंने उसमें भी कहा था जब आप after word यूज करते हो तो उसमें वो second place included है. But अगर between होता तो वो 3 दिन आगे चला जाता. Comfortable? Good Kamal. Thank you Chandan and Kamal. Fine. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. जल्दी से बेटे इसको टारगेट करो एंड लेट मी नो व्हाट शुड बी द राइट आंसर. अब वर्ड को ध्यान से पढ़ना है. इन द इंग्लिश लेटर सीरीज व्हिच लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय के? अगेन आई एल जे डिफरेंट आंसर्स. आई नीड वन परफेक्ट आंसर. एक बार ध्यान से पढ़ो फिर से. व्हिच लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय के? Okay. Nay Shubha Lakshmi. See, the right answer has to be J. Again, bete, try to understand the mistakes. I said immediately followed by K. एक बड़ी common सी mistake है. I don't know, majority of the people keep committing this mistake. बेटे, by एक ऐसा word है जो बात का मतलब change करता है. देखो, logically समझो, if I use the word the letter that follows K. बेटे, the letter that follows K has to be L. Follow का मतलब बाद में होता है. Logically समझो बेटे, if I says I am following somebody, मैं किसी का पीछा कर रहा हूं, मैं उसके पीछे हूं. But when I says I am followed by somebody, कोई मेरे पीछे है, मैं आगे हो जाऊंगा ना. So when I says I am followed by somebody, तो मैं आगे हूं, दूसरा पीछे है. So when I says which letter is followed by K, बेटे किस लेटर के बाद K आता है? My right answer has to be J. कि छोटे छोटे वर्ड्स, प्लीज बी वेरी केयरफुल. Had the word been the letter that immediately follows K, K के बाद क्या आता है? Has to be L. ठीक है? बट अगर मैंने ये वर्ड बाय लगाया हुआ है तो ये बात का मतलब चेंज हो रहा है. So the letter that is immediately followed by K, किस लेटर के इमीडिएटली बाद K आता है? The right answer has to be J. I hope Chandan Akanksha it makes sense. ठीक है? Be very careful और अगर हो सके तो इसके नोट्स बनाओ. Attend proper classes again. Try to notice all these words very clearly. चंदन को नहीं क्लियर? चंदन मेरा पॉइंट समझ बेटे. अगर चंदन if I says, you can answer me in any language that you want to. But if I says Chandan, you are following somebody. ठीक है? You are following, perfect Mansi. When it says you are following somebody, बेटे आप you will be ahead, you will be first or second? You are following somebody. एक फर्स्ट पे और एक सेकंड पे, तो आप कहां होगे? फर्स्ट पे के सेकंड पे? चंदन, you are following somebody, तो आप पहले होगे कि बाद में होगे बेटे? फर्स्ट होगे कि सेकंड होगे? You will be second बेटे. You are following somebody. चंदन प्लीज try to understand. थोड़ा सा उसे इंग्लिश में समझो. When you follow somebody, तो आप उसका पीछा कर रहे हो, मतलब आप बाद में हो. You will be at the second position. ठीक है? But when I says you are followed by somebody, कोई आपका पीछा कर रहा है. तो एक छोटी सी बात याद रख लो, अगर गलती हो जाती है तो उसको लिख लो कहीं पे. जो वर्ड फॉलो है, प्रोसीड है, सक्सीड बोल सकते हो, इन सबका मतलब होता है बाद में. ठीक है? फॉलोड, अब ये फॉलो, प्रोसीड और सक्सीड का मतलब बाद में है.
बट अगर ये फॉलोड बाय, प्रोसीडेड बाय, सक्सीडेड बाय आ जाए तो मतलब पहले है। परफेक्ट कमल, फॉलोड बाय का मतलब पहले है, फॉलोज का मतलब आप बाद में हो। 100% करेक्ट कमल। ठीक है, सो जब ये वर्ड बाय लग जाता है ना बेटे, ये बात का इंटरप्रिटेशन उल्टा कर देता है। फॉलोज, प्रोसीड, सक्सीड बाद में है, फॉलोड बाय का मतलब आप पहले हो, प्री हो जाएगा। कंफर्टेबल? चलो एक और जल्दी से अगला करो। सो सॉरी। विच लेटर अकर 16 प्लेसेस आफ्टर एफ? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अभी आपको कुछ समझाया। आकांक्षा बेटे मैं डेफिनेटली दोनों लैंग्वेजेस में साथ साथ चल रहा हूं। बच्चा जॉन सा पॉइंट बताओ मुझे, कौन सा पॉइंट हिंदी में एक्सप्लेन करूं? बेटे ध्यान से देख वैष्णवी, बेटे मैं फिर बोल रहा हूं, देख फॉलोस का मतलब क्या है? बाद में। तो इसको रट्टा मार लो, याद कर लो, अगर आपके वर्ड वर्ड फॉलोज है, प्रोसीड है या सक्सीड है तो आप बेटे बाद में हो। फॉलोड बाय का मतलब आप पहले हो। ठीक है आकांक्षा? तो जहां भी ऐसा लिखा हो फॉलोड बाय, या ऐसा लिखा हो प्रोसीडेड बाय या सक्सीडेड बाय, तो आप पहले हो। बेटे मेरे को 3-4 अलग अलग आंसर्स मिले हैं लास्ट पार्ट के, फिफ्थ पार्ट के। दोबारा से देखो, वैष्णवी एंड प्रिया सेज वी, वेरी गुड। अगेन बेटे आई होप आपको बेसिक इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स थोड़े आते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो वी ऑलवेज फोकस यू टू रिमेंबर अ सर्टेन वर्ड, इजोटी। बेटे E is the fifth letter, J is 10th, O is 15th, T is 20 and Y is 25। वैसे तो अल्फाबेटिकल सीरीज ऑलमोस्ट याद ही हो जाती है, कर लेनी चाहिए क्योंकि बिकॉज पेपर में टाइम नहीं है। कुछ भूल भी जाओ तो उसको पकड़ लो। ठीक है, अब बच्चे मेरे पास F कौन सी प्लेस पे है? 6 प्लेस पे। E के बाद F आता है और 16 प्लेसेस आफ्टर F हैज टू बी, दैट मींस 22। गुड करे ना? तो 22nd लेटर कौन सा होगा? अगर नहीं भी पता तो T20 है, T के बाद U और फिर V। सो डेफिनेटली मेरा आंसर V होना चाहिए। अब देखो बेटे ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं मार्क्स लूज करता हूं तो प्रॉब्लम है ना। कुछ बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, उसको समझो। 16 प्लेसेस आफ्टर F, F6 पे है, उसके 16 प्लेसेस बाद हैज टू बी 22। सो 22nd लेटर हैज टू बी V। कंफर्टेबल? इतनी सी बेसिक लैंग्वेज आई होप सबको क्लियर। गुड। अब इसको इस तरह से नहीं डालते हैं, थोड़ा सा घुमा के डाल देंगे, पजल की फॉर्मेट में डाल देंगे, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में डाल देंगे। तो मैं आप लोगों को 3 मिनट्स दूंगा एंड यू विल हैव टू सॉल्व नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। You have to give me the answer for these 3 questions now. You have 3 minutes. I have the timer with me. I'm looking forward for your time. ठीक है? So you have to type the answer for next 3 questions. बेटे एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है, यू नीड टू टाइप ऑल द आंसर्स इन वन गो एंड आई विल बी टेलिंग योर आंसर्स देन। काइंडली डोंट टाइप फर्स्ट का सेकंड का, बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट, आई वुड नॉट बी शेयरिंग द आंसर की बिफोर एवरीबॉडी वुड टाइप। ठीक है, सो टाइप द आंसर इन वन गो, तीनों आंसर्स पहले सॉल्व करो और फिर मुझे लिखो चैट बॉक्स में कि आपका क्या आंसर है, देन आई विल कमेंट ठीक कितने ठीक है कितने गलत है। वुड नॉट बी गिविंग यू द राइट आंसर बिफोर 3 मिनट्स। आई वुड ओनली टेल यू आपके कितने ठीक है कितने गलत है। सो सॉल्व ऑल 3 क्वेश्चंस फर्स्ट।
Garima says BCC. Okay, Garima, cross check. There are certain mistakes. Your 2 minutes gone, 1 minute left. Vinita says CDC. Vinita, no, you need to cross check your answers. Vaishnavi says ACB. Vaishnavi, close. There is one mistake. Chandan, I could not understand C is the answer for what, so need to type all the three answers. And if you're not comfortable with one, you need to put a blank for that. अगर आपको तीनों हो गए हैं तो सॉल्व करो, जो नहीं हुआ उसके लिए ब्लैंक डालो, बट मुझे तीनों आंसर्स चाहिए बेटे. मनीष, नो. CEC, सुभा लक्ष्मी, डाउट्स. जसप्रीत, नो. अपर्णा, डाउट्स. जसप्रीत, CD. चलो एक बार ही देखते हैं, ठीक है. I've given you 3 minutes. अब मैं जब प्री में बैठा हूं तो बेटे मेरे को इन 3 क्वेश्चंस के लिए आइडियली 1.5 से सिर्फ 2 मिनट्स लगने चाहिए थे, ठीक है. सो मैं गलतियां नोटिस करूंगा, गलतियां कहां पे हो रही हैं. इस तरह के नॉर्मली यू विल गेट 4 और 5 क्वेश्चंस इन योर प्री. इसे अल्फान्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं, ठीक है. डेफिनेटली बेटे, चंदन, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दी क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर. अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. लेट्स गो इट ग्रेजुअली. गुड करीना, फर्स्ट का आंसर डी है. वैष्णवी, फर्स्ट का आंसर डी है. देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. पढ़ने के लिए बेटे 5 सेकंड्स लगते हैं, बट उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है. रीजनिंग में स्किमिंग नहीं हो सकता, आप ऊपर से नहीं पढ़ सकते. आपको बहुत ध्यान से हर एक वर्ड को पढ़ना है, देन ग्रेजुअली हैज टू गेट योर आंसर्स. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी. तो मैंने इस सीरीज को ना देख के इंग्लिश डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है. Between the element which is 7th from the left. So let's quickly count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th from left is L. And 9th from right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. पहली तो बात ये थी इस क्वेश्चन में कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि 7th फ्रॉम लेफ्ट कौन सा और 9th फ्रॉम राइट कौन से. अब मुझे पता लग गया वो दो लेटर्स कौन से, एक ए है और एक एल है. इंग्लिश डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे. इस सीरीज में नहीं, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, डिक्शनरी में, डिक्शनरी के हिसाब से ये फर्स्ट लेटर है और ये 12th लेटर है. थोड़ी देर पहले हमने कहा अगर ये एक 1 है और एक 12 है तो इनके बीच में कितने होंगे, 11 minus 1, that has to be 10. So becomes a very easy one. ठीक है. This question has been picked from last year banking PO exam, pre-exam. तो बहुत मुश्किल कुछ नहीं होता. कम ना आउट ऑफ दैट फोबिया के कुछ बहुत नई और बड़ी मुश्किल चीजें आती हैं वहां पे, बिल्कुल इजी चीजें आती हैं. हमारी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन बस अच्छी होनी चाहिए. आई शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम इन इंटरप्रेटिंग द लैंग्वेज. आई होप सबको पॉइंट क्लियर हुआ बेटे. नीड योर रिस्पॉन्स. चंदन, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया बच्चा, अगर जब मैं 12 minus 1 करता हूं तो इसमें 12 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है. जैसे मैंने 5, 6, 7, 8, 9 में लिख के दिखाया था. अगर बेटे मैं 5, 6, 7 बोलता हूं तो 7 minus 5 2 सिग्निफाई करता है 6 and 7. सो आई हैव इंक्लूडेड 7. बट अगर मैं वर्ड बिटवीन बोल रहा हूं तो मुझे उसको लास्ट को भी एक्सक्लूड करना होता है. सो बेटर लॉजिक यही होता है, दो चीजों का बिटवीन निकालने के लिए x minus y minus 1 कर दो, ठीक है. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये दिस शुड बी क्रिस्टल क्लियर, बिकॉज पेपर में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट कर सकूं. बेटे आय यहाँ पे है नहीं, आय वाले को इंक्लूड नहीं करना मतलब, जसप्रीत आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन.
ओके जसप्रीत, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांटेड टू से बिकॉज़ आई कोई कंसिडरेशन में नहीं था। मुझे 7th परफेक्ट एल को नहीं इंक्लूड करना बेटे, बिटवीन लेना है जसप्रीत, ठीक है? क्योंकि मुझे बिटवीन लेना है, तो बिटवीन दो चीजों के बीच में क्या होता है बेटा, देख तू कहेगी 5 और 7 के बीच में क्या है, सिर्फ 6, ठीक है? तो मुझे ना 5 को इंक्लूड करना होता है ना 7 को। परफेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटे, आपको समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। पहली तो बात, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? मैं उसके लिए सी लिख रहा हूं, सी इज नॉट फॉर सी बट फॉर कॉन्सोनेंट are there in the above arrangement, each of these is immediately preceded by a consonant. बेटे, consonant preceded by a consonant and all immediately followed by a number. अब बेटे this consonant should be followed by a number. consonant के बाद नंबर होना चाहिए और पहले consonant होना चाहिए। करीना प्लीज ध्यान से समझ बेटे, कितने ऐसे consonants हैं बेटे which are preceded by a consonant? बेटे ये कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए एंड ऑल्सो फॉलोड बाय अ नंबर, ठीक है? अगेन व्हेन इट सेज इस केस में कॉन्सोनेंट इज फॉलोड बाय नंबर। कॉन्सोनेंट इज, आपने जो लिखा करे ना एनसीसी, इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज फॉलोइंग अ नंबर। करना, मेरा पॉइंट क्लियर करो बेटे। जब आप एनसीसी लिखते हो तो इसमें दिस कॉन्सोनेंट इज फॉलोइंग अ नंबर, but what I wanted is consonant is followed by a number. So the right sequence that I have to look forward is for CCN. Clear बेटे? So जब भी ऐसा फॉर्मेट आता है तो spend 5 seconds but interpret आप कहना क्या चाह रहे हो. So what you are looking forward for is two consonants together and then a number. सबके लिए अब हमें दो कॉन्सोनेंट्स देखना है। आई होप सबको पता है कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं जो वाउल्स नहीं होते हैं। वाउल्स ए ई आई ओ यू हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। सो अब आपको ऐसे नंबर देखने हैं जहां पे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और नंबर हो। एक ये दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे डी एक ऐसा है जिससे पहले कॉन्सोनेंट और बाद में नंबर है। फिर बेटे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नंबर चाहिए, यहाँ पे आ रहा है। और कहीं पे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और नंबर नहीं है, दैट इज व्हाई द राइट आंसर हैज टू बी 2। गौरी को क्लियर हो गया? बाकी लोग बच्चे देखो, अगेन शुड टेक 10 to 15 seconds that I should have my answer. ये पॉइंट बेटे देखो, सबको समझ आया? सो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वर्ड समझने, फॉलोज, फॉलोड बाय, प्रीसीड, प्रोसीडेड बाय, कहां पे कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है, सारा आंसर उससे चेंज होगा। बेटे u इज अ वाउल, जस्ट बी दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड बी यू टू, ठीक है? यहाँ पे ये जो है ये वाउल है, मुझे वाउल्स नहीं लेने थे बेटे, मुझे सिर्फ कॉन्सोनेंट्स देखने हैं। गुड। एनीबॉडी विद अ डाउट इन दिस क्वेश्चन बच्चे? ठीक है, अब मैं आपको फिर से 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन फिर से खुद ट्राई करो, ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो। थर्टी seconds and you have to give me your answer. ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ो बच्चे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इमीडिएटली प्रीसीड्स अ वॉवल? अच्छा चलो लिख के बताओ, व्हाट डू यू वांट, वेदर इट इज एनवीसी, सीवीएन, क्या होना चाहिए? बिफोर यू गिव योर आंसर टाइप मी व्हाट शुड बी द ऑर्डर, वेदर इट इज सीएनवी, वीसीएन, क्या होना चाहिए? वीएनसी? गुड वैष्णवी। बेटे ध्यान से देखो, मेजॉरिटी ऑफ यू आर नॉट पुटिंग इट राइट अगेन। I wanted numbers that should precede vowel. बेटे नंबर शुड प्रीसीड वाउल, नंबर वाउल से पहले होना चाहिए एंड फॉलोज अ कॉन्सोनेंट। अब सब लोग ठीक लिख रहे हैं, तो व्हाट आई वांटेड इज सी एन वी एंड नॉट वी एन सी। बेटे इट शुड प्रीसीड अ वाउल, जो नंबर है उसको वाउल से पहले आना है
एंड ऑल्सो फॉलोज अ कॉन्सोनेंट, नंबर कॉन्सोनेंट के बाद होना चाहिए। तो बेटे सी एंड वी चाहिए, कॉन्सोनेंट, नंबर और वाउल। मेरे पास यहाँ पे भी नहीं है, ये बेटे कॉन्सोनेंट, नंबर और वाउल है। ध्यान से देखो बेटे, दिस इज कॉन्सोनेंट, नंबर एंड वाउल। उसके बाद कहां पे ऐसा दिख रहा है कि कॉन्सोनेंट, नंबर और वाउल है? कहीं नहीं दिख रहा। दैट इज व्हाई द राइट आंसर हैज टू बी ओनली वन। गुड प्रिया। बेटे पहले सब इसको ध्यान से देखेंगे बिकॉज आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल विद दिस पॉइंट। ये सबसे स्कोरिंग पार्ट्स होते हैं पेपर में। साइलॉजिज्म जरूर किया करो, ये वाले क्वेश्चन जरूर करो, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस करो, फिर पजल्स पे आओ, ठीक है? बट अगर इस तरह के 5 क्वेश्चन है, आई वुड एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व विद इन 3 मिनट्स एंड ऑल 5 करेक्ट। तो अब अगली बारी इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके नोट्स बना रहे हो, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ के दिमाग में बिठा लो बच्चे। विद इन 5 सेकेंड्स आप ये CNV VNC बना पाओ, ठीक है? करना क्या है उसके बाद, दिस जॉब वुड बी हार्डली 10 सेकंड जॉब, तो आपके पास 20-25 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है? सो दिस वाज वन एस्पेक्ट दैट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे कि हम लोग लैंग्वेज में कहां पे गलतियां कर रहे हैं अभी, हम किस तरह से गलत पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से मेरे आंसर्स गलत हो जाते हैं, ठीक है बच्चे? अब सेकंड चीज थोड़ा सा आ रहा हूं बिकॉज आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ यू फेस प्रॉब्लम्स इन पजल्स। तो आई वन थिंग दैट आई ऑलवेज कीप स्ट्रेसिंग इज, पजल्स में टॉपिक को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, उसका राइट फॉर्मेशन क्या होना चाहिए। फिर से बेटे इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम कोई गलत वर्ड तो नहीं पढ़ लेते हैं, गलत एजम्पशन तो नहीं ले लेते हैं, बिकॉज 5 क्वेश्चन गलत होने का रिस्क है, ठीक है? तो कुछ एग्जांपल्स देने लगा हूं पिछले सालों के एग्जाम्स में से, सॉरी पिछले एग्जाम्स में से, कि किस तरह से प्री में क्वेश्चंस आते रहे और हम उसमें क्या कर सकते थे। सो एवरी टाइम आई विल बी गिविंग यू 4 मिनट्स टू सॉल्व अ सेट। गुड इनफ टाइम होगा, एवरेज 2 मिनट में वो सेट सॉल्व हो सकता है। नॉर्मली बेटे जो सेट्स में क्वेश्चन आते हैं दैट वुड बी इन फॉर्मेट ऑफ 5 क्वेश्चंस, बट राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग यू 5 क्वेश्चंस बिकॉज थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम था स्लाइड के ऊपर, आई वांटेड टू गिव द सेट मोर। तो एवरी टाइम आई हैव इंक्लूडेड 2 or 3 क्वेश्चंस, you just have to give me the answer to these questions only, ठीक है? This test should be on solving puzzle. So I'm giving you, this question should be solved in maximum of 2 to 3 minutes. Still I'm giving you 3 minutes, need to type the answer to 3 questions. एक बड़ा सिंपल सा पजल था, इसको ध्यान से पढ़ो। मैं कुछ पॉइंट समझाऊंगा कि किन चीजों को ध्यान देना चाहिए था, बट क्विकली ट्राई टू गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड किस तरह से कर सकते हैं। In the meanwhile, anybody who needs to ask me anything, you can keep typing in the chat box, but I'll keep answering your queries. किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डिस्कस करना है, definitely you can put in the chat box. Otherwise, definitely, beta, you can keep trying your question. मानसी बेटे, इंटरव्यू प्रोसेस आफ्टर मेंस जो होता है वो सिर्फ, एक तो पहली बात पीओ में होता है, क्लरिकल में इंटरव्यूज नहीं है, ठीक है? अगर आप पीओ में जाते हो और मेंस की बात कर रहे हो, इंटरव्यूज की बात करते हो, तो प्रैक्टिकली बेटे जो मेजर फोकस रहता है दैट वुड बी योर करंट नॉलेज एंड योर बैंकिंग अवेयरनेस। अगर मैं रिसेंटली इंटरव्यूज को देखो तो उन्होंने जो मेजर फोकस किया, एक तो पहली बात लैंग्वेज पे फोकस नहीं होगा, ठीक है?
Most of the time language is not the major constraint. You can speak in Hindi, you can speak in English or common your mother tongue, fine. But जो major focus रहेगा that would be आपकी basic current awareness क्या है, that to majority of the time related to your issues that is related to your business, banking awareness and major stuffs. Akanksha, session is going to be till 6:30. मानसी, तो अगर आप इंटरव्यूज को प्रिपेयर कर रहे हो, मैं उससे ज्यादा कहूंगा पहले अपनी जर्नल नॉलेज को प्रिपेयर करो, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हो और उसमें अवॉइड ऑल पॉलिटिकल न्यूज, दे विल नेवर आस्क और नेवर विल गेट इनटू दैट. कुछ भी इंपॉर्टेंट लॉ पास हुआ है, कोई रिसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर आपका इंटरव्यू प्रोबेबली बेटे वुड बी अकरिंग इन द मंथ ऑफ लेट्स से मार्च टू जुलाई, तो बजट जैसे आया होगा उस समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो जिस तरह की चीजें ऐसी आ रही हैं, डेफिनेटली दैट यू हैव टू फोकस ऑन देम. फाइन. आकांक्षा बेटे विल एंड अप टिल 6:30. सपिन, नो शॉर्टकट नहीं होते बेटे, बट ट्रिक्स होती हैं. दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि इसको हैंडल कैसे करना है. ठीक है, यू हैव टू क्रिएट अ सीक्वेंस, नो डाउट इन दैट, बट सीक्वेंस बनाना कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट आई एम गोना टीच यू राइट नाउ. किस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, पहले कौन से एरियाज पे ध्यान देना है. ठीक है, बट एक बार खुद से ट्राई करो. 1 more minute टू गो, देन एक्सप्लेन. अगर इस क्वेश्चन को करना था तो किन किन चीजों पे ध्यान देना था, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो पहले किस चीज पे फोकस करोगे. विल डेफिनेटली वुड वर्क ऑन दीस ट्रिक्स बेटे. Chandan, I would not be sending the answers right now because but I want you to solve this. Definitely at the end of the session, I can share the answer key with you. Okay, your answers, your 4 minutes are gone. Looking for the answers from your side. Karina says DDB. Good, Karina. चलो एक बारी कुछ पॉइंट समझा लूंगा बेटे. ट्राई टू बी वेरी क्लियर विद दोस पॉइंट्स. ठीक है, नो जस्ट द आंसर्स आर नॉट करेक्ट. डी ए बी नहीं है बेटे, डी डी बी है. पहली तो बात बेटे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर कुछ डायरेक्शन स्पेसिफाई की हो, वहीं पे कॉन्शियस हो जाओ कि मेरे को कुछ डायरेक्शन का यूसेज जरूर होगा. दो डायरेक्शन स्पेसिफाइड थी. पहली बात, the rooms has been arranged in ascending order from 101 to 110 from north to south. That means in the north I need room number 101 and in the south I need room number 110. Second most important point in the question was the rooms has to face west. अब बच्चे जहां पर फेसिंग दिया होता है कि आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटे. क्वेश्चन की लैंग्वेज उससे फर्क पड़ेगी, मेरे राइट लेफ्ट चेंज हो जाएंगे. तो एक चीज को समझो, जब भी मेरे को कुछ ऐसा दिया हुआ है कि मेरी डायरेक्शन वेस्ट है, पहली तो बात मेरा जो अरेंजमेंट है वो नॉर्थ से साउथ है. नॉर्थ ऑब्वियसली हम ऊपर लेके चलते हैं और साउथ हम नीचे ले लेते हैं. दैट इज वी आर वेरी क्लियर. सो सॉरी बेटे, मुझे यहाँ पे साउथ लिया है और ऊपर नॉर्थ लिया है. अब भाई बेसिक डायरेक्शंस अगर आप समझो, इतना हम सबको पता होता है. अगर मैं इसको नॉर्थ मान रहा हूं, इसको साउथ मान रहा हूं, सो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. एक चीज याद रखते हैं, जब भी हम किसी डायरेक्शन में फेस करते हैं तो हम अपने आप को सेंटर में अज्यूम करते हैं. And whenever we are facing a certain direction, understand the idea or remember it very clearly. My right would always goes clockwise. डायरेक्शंस के चैप्टर में भी कई बार आप ऐसा करते हो, यू मूव फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू अ राइट टर्न देन अ लेफ्ट टर्न एंड समथिंग लाइक दैट. सो अगर आप किसी भी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, सो आप क्या कहते हो बेटे, नॉर्थ का जो राइट है वो ईस्ट है, ईस्ट के लिए जो राइट है वो साउथ है. सो व्हेन यू आर फेसिंग वेस्ट, need to understand your right has to be towards north and your left has to be towards south. जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको कुछ ऐसा कहा हुआ है that you are facing a certain direction, this is the first thing that you need to understand कि आपका राइट किधर और आपका लेफ्ट किधर है. हम ये पहली गलती पेपर में करते हैं, जिसकी वजह से मेरे 4 या 5 मिनट वेस्ट होते हैं. आई एंड अप वेस्टिंग 4-5 मिनट्स एंड अगेन नेगेटिव मार्किंग है बेटे. आंसर सही आने की बजाय गलत आ गए, लॉस ऑफ 6.25 मार्क्स. ठीक है,
सो आई होप माय पॉइंट इज वेरी क्लियर। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हो, तो सबसे पहले आपने ये ड्रॉ करना है कि राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। अब मेरे पास इजी क्वेश्चन था, 5 स्टेटमेंट थी, तो ये आइडेंटिफाई करेंगे स्टार्ट कहां से करना है। आई होप मोर और लेस क्लियर था। एच वॉज बिटवीन सी एंड ई से स्टार्ट नहीं कर सकता, कहीं भी हो सकता है। सो विल स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ए वॉज इन रूम नंबर 104. So sorry, this has to be A in room number 104 and has a vacant room to his immediate left. अब बेटे मुझे पता है लेफ्ट नीचे है, तो रूम नंबर 5 वेकेंट होना चाहिए। कैन नॉट हैव एनीबॉडी इन दिस रूम। ये काफी हद तक क्लियर था। फिर वो कह रहे हैं बेटे, सो सॉरी, यहाँ पे स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, मैं पिछली स्टेटमेंट्स को ले रहा हूँ, सो सॉरी बेटे, आई एम नॉट फॉलोइंग दिस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ क्यों, मेरे से कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है। फिर उसने लिखा हुआ था बी who was in the third room from the B who was right of F was in the third room from the south. बेटे B जो है वो कहां पे है, has to be third from the south. अब बेटे उसने वर्ड इमीडिएट नहीं लगाया हुआ, ध्यान से देखो, बी हु वाज राइट ऑफ एफ लिखा हुआ है, इमीडिएट राइट ऑफ एफ नहीं हो सकता। सो बेटे एफ के राइट पे है, तो एफ कहां पे होगा, एफ वुड बी आइदर इन 109 और 110। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी जो था वो राइट ऑफ एफ है, मतलब एफ जो है वो कहां पे हो सकता है, वुड बी आइदर 109 और 110। फिर उसने कहा था डी वॉज 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी। डी बेटे कहां पे है, डी वॉज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, सॉरी लिखा हुआ है, डी 106 पे होगा या 110 पे होगा। एंड उसने कहा था एफ हैज नोबडी ऑन हिज इमीडिएट एडजेसेंट साइड्स। अब बेटे प्रॉब्लम को समझो, मेरे पास एफ के साथ कोई नहीं है, एफ फिलहाल बेटे कहीं भी आ सकता है, वो क्लैरिटी नहीं है। और एक स्टेटमेंट थी सी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, और एच सी और ई के बीच में है, तो बेटे लॉजिकली एच यहां पे होगा, सी कॉर्नर पे हो नहीं सकता, तो सी वुड बी आइदर एट दिस पोजीशंस। बट क्योंकि मुझे एफ को 109 और 110 पे लेना है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं हो सकता, तो बेटे ये वाला केस इनवैलिड हो गया। यहाँ पे एफ को बी के नीचे लेना था, लेकिन अगर मैं यहां ले लेता हूं तो वो डी के साथ आ जाएगा। सो वेरी क्लियरली एफ 110 पे है, 9 वेकेंट होगा, और जो बच गया जी हैज टू बी एट 107। ठीक है, तो एक बेसिक सा पॉइंट बस इसमें था बच्चे, ये समझना था कि राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। सो ऑब्वियसली जो मुझे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूम वाज वेकेंट, जो गिवन था उसमें से कोई रूम वेकेंट है नहीं, 6 7 8 तीनों ऑक्युपाइड थे। हु वाज इन द इमीडिएट राइट रूम ऑफ ए, ए का जो राइट है बेटे वो ऊपर की तरफ होगा, हैज टू बी सी। एंड व्हाट रूम वाज ऑक्युपाइड बाय जी, सो हैज टू बी 107। श्योर, चलो एक और सिंपल से एग्जांपल करते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन बेटे। अगेन आई वुड डेफिनेटली एक्सप्लेन सम ट्रिक इन दिस क्वेश्चन कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, क्या देखना था, बट पहले एक बार सारे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे।
Okay, anybody who can solve the answer, give me the answer. Giving you 2 more minutes. Anybody who is able to solve it? चलो एक बारी बेटे समझा रहा हूं। अब इसमें फर्क क्या था देखो, देखने में तो ऑलमोस्ट स्पेशल जैसा क्वेश्चन लगा। यहाँ पे एक 10 स्टोरी बिल्डिंग है। अब बेटे एक चीज क्लियर है, अगर बिल्डिंग की फ्लोर्स नंबर की बात हो रही है, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो वी कुड अंडरस्टैंड जो फ्लोर नंबर 1 है वो बॉटम मोस्ट फ्लोर होगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बेटे। पिछले क्वेश्चन में इट वाज स्पेसिफाइड दैट द रूम्स वर अरेंज्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, but when it's a 10 story building we can understand floor number 1 would be at the bottom and floor number 10 has to be at the top। इतना फंडामेंटल क्लियर है। एक सेकंड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला होता है। हमें गंदी आदत होती है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है हम पहले से ही 1 to 10 लिख लेते हैं। बट बेटे एक चीज जरूर क्वेश्चन में पढ़नी है, यू नीड टू स्पेंड 30 सेकंड्स 1 मिनट एंड अंडरस्टैंड क्या इस क्वेश्चन में फ्लोर नंबर्स की रेफरेंस है। शायद नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट थी 6 फ्लोर इज वेकेंट जहां पे फ्लोर का नंबर बताया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज किसी भी स्टेटमेंट में फ्लोर का नंबर नहीं है। विनीत बेटा, विनीता नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कैसा है। whenever you go to a building of a 10-story building or a 20-story building, obviously beta your floors keep increasing when you're moving upwards, ठीक है ना बच्चा। when you goes upside आपका फ्लोर नंबर बढ़ेगा, कभी भी कम नहीं होगा until unless specified। श्योर, डायरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रूम नंबर कैसे भी अरेंज हो सकते हैं किसी कॉरिडोर में, लेकिन फ्लोर नंबर्स नहीं। फाइन। अब इसमें एक सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गुड करेना, ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट, वेरी गुड। पॉइंट समझो बेटे, मैं इसमें जो सेकंड पॉइंट समझा रहा हूं, क्वेश्चन में पढ़ना जरूर है कि मेरे पास क्वेश्चन में फ्लोर्स का रेफरेंस है कि नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट थी जिसमें कहा था कि 6 फ्लोर वेकेंट है, बाकी किसी भी स्टेटमेंट में फ्लोर नंबर्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। तो अगर मैं पहले से 1 till 10 लिख लूंगा तो आई वुड प्रोबेबली वुड नॉट बी एबल टू मूव विद द स्टेटमेंट्स। सो इस क्वेश्चन में मुझे पहले से 1 से 10 नहीं लिखना है। यही ट्रिक्स होती हैं बेटे पजल्स को सॉल्व करने की, कि आपके क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसी है, आप उसको कैसे डालने वाले हो। सो अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होगा तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, आई वुड नॉट बी पुटिंग द फ्लोर नंबर्स बट आई गो जनरली। किस तरह से सारे एक बार समझेंगे। इट सेज द डेंटिस्ट लिव्स ऑन 4th फ्लोर अबव द डॉक्टर, C lives on second floor above the dentist। सो बेटे मुझे क्या चाहिए, जो यहाँ पे भी डॉक्टर है कहाँ पे है, मुझे उसका फ्लोर नंबर क्लियर नहीं है, बट जो भी डॉक्टर की पोजीशन है उससे 4th फ्लोर अबव, मतलब 3 बीच में है, और फिर कौन है, डेंटिस्ट। एंड C has to be 2 floors above dentist। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मुझे अभी किसी का फ्लोर नंबर नहीं पता है, पहली दो स्टेटमेंट से सिर्फ इतना समझ आता है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है द बिजनेसमैन लिव्स ऑन द हाईएस्ट फ्लोर। बिजनेसमैन बेटे हाईएस्ट फ्लोर पे है, अभी क्लियर नहीं है, वो सी भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। और बिजनेसमैन और इंजीनियर के बीच में 7 फ्लोर्स का गैप है, इनके बीच में 7 फ्लोर्स हैं, और फिर नीचे इंजीनियर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर इंजीनियर 1 पे होगा
तो बीच में 7 फ्लोर्स होंगी, बिजनेसमैन 9th पे होगा, या इंजीनियर 2 पे होगा और बिजनेसमैन 10 पे होगा। उनके बीच में 7 नंबर्स और हैं, 7 फ्लोर्स और हैं, तो उससे 8 फ्लोर्स ऊपर होगा। मतलब या तो 1 पे इंजीनियर है और 9 पे बिजनेसमैन है, या फिर 2 पे इंजीनियर है और 10 पे बिजनेसमैन है। अभी श्योर नहीं है। फिर वो कहता है डॉक्टर लिव्स अबव बी। डॉक्टर बेटे बी के ऊपर है, इमीडिएटली जरूरी नहीं है। मतलब बी जो है वो डॉक्टर से नीचे होना चाहिए, कितना नीचे है वो भी श्योर नहीं है। 6th फ्लोर वेकेंट है, अभी उससे कुछ पता नहीं लगता, बट इट सेज लॉयर लिव्स डायरेक्टली बिलो डेंटिस्ट। अब बेटे इससे ध्यान से समझो, लॉयर जो है वो डायरेक्टली डेंटिस्ट के नीचे है। देयर हैज टू बी ओनली 5 पीपल, उसमें से एक सी है, एक डेंटिस्ट है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है और ऑब्वियसली एक बी है। तो जो हाईएस्ट है वो बेटा बिजनेसमैन होना चाहिए। और बिजनेसमैन के बाद बीच में 7 फ्लोर्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, एंड देन आई शुड हैव बी। कंफर्टेबल? और ये मेरे पास कौन होगा? इंजीनियर। ये डेंटिस्ट, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन फिक्स हो गए। परफेक्ट है। फिर वो कह रहा था डी डज नॉट हैव एनी इमीडिएट नेबर, सो डी के पास कोई नेबर नहीं होना चाहिए, तो डी हैज टू बी डॉक्टर बिकॉज डेंटिस्ट और लॉयर का नेबर है। एंड ही हैज ओनली वन रेजिडेंट लिविंग अबव हिम, ई डेंटिस्ट होगा, उसके ऊपर एक ही है, सी, सो द लेफ्ट ओवर हैज टू बी ए। अब मेरे पास दो केसेस थे, या तो ये फर्स्ट होगी और ये 9th फ्लोर होगी, और मुझे एक चीज कही हुई थी द 6th फ्लोर हैज टू बी वेकेंट। अगर मैं इसको 1 ले लेता हूं तो दिस इज 2 3 4 5 6, बट ये 6 पे लॉयर आ जाएगा, वेकेंट नहीं हो सकती। सो दैट मींस दिस हैज टू बी सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, एंड दिस हैज टू बी 10th फ्लोर। एक बार देखो बेटे, इस तरह के बहुत सारे पजल्स आपको आने वाली हैं। मेन समझने वाली बात यह है कि आप पजल को टारगेट कैसे करोगे बेटे। यू हैव टू हैव अ गुड अप्रोच टुवर्ड्स इट। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे अभी भी, बट उनकी अप्रोच गलत है। वो रैंडमली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, उनके पास कोई फॉर्मेट नहीं है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करें। प्रॉब्ली व्हाटएवर यू आर फॉलोइंग इज अ वेरी रैंडम अप्रोच। किसी भी एग्जाम को टारगेट रैंडम तरीके से नहीं किया जा सकता बच्चे। आपको एक सर्टेन मेथड डेवलप करने हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, उसका फॉर्मेट समझना है कि उसको स्टार्ट कैसे देना है। अगर आप उसको गलत स्टार्ट दे रहे हो तो आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आई होप बेटे सबको ये फॉर्मेट समझ आया। एक बेसिक डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड को सेट पजल में फर्क क्या था, पहले में डायरेक्शन स्पेसिफाइड थी एंड वी कैन फिक्स अप द नंबर्स, यहाँ पे इट वाज नॉट पॉसिबल। रेफरेंसेस वर नॉट फॉर फ्लोज बट वाज मोर फॉर कौन किससे कितना ऊपर है कितना नीचे है। देखो बेटे ये कंफर्टेबल है, थोड़ा बहुत सबको क्लियर? एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, करीना इज क्लियर? चलो, एक्सपेक्टिंग थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कैसे टारगेट करना है, बट डेफिनेटली बेटे यू हैव टू फॉलो सर्टेन अप्रोच, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी कुछ ज्वाइन कर रहे हो, कहीं कुछ प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है तो गुड है, अदरवाइज डेफिनेटली यू कैन कम बैक टू अस, वील हैव प्रॉपर शेड्यूल्स फॉर दैट, विल डेफिनेटली विल टीच यू एवरीथिंग इन दिस रिस्पेक्ट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में से ही है, ठीक है। पिक द क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन ओनली। एक और क्वेश्चन था जिसमें फिर से डायरेक्शंस की बात हो रही थी। Expect you to solve this question in again 4 minutes.
नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली बेटे। इस क्वेश्चन में फिर से डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी। वो कह रहे हैं कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये समझना कि किसका राइट किधर है, किसका लेफ्ट किधर है। अच्छा बेटे, चलो कुछ समझाता हूँ इसको कैसे करना चाहिए। बहुत कॉमनली इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ लोग इधर देख रहे हैं, कुछ लोग इधर देख रहे हैं, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को अब कैसे करना है। गुड वैष्णवी, वेरी गुड। बहुत मुश्किल नहीं था, अगेन वाज एन इजियर वन। ध्यान से देखो बेटे, 7 लोग हैं। सबसे पहले समझने वाली बात है, जो लोग नॉर्थ में देख रहे हैं उनका बेटे राइट किधर होगा, हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन। ये लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और इनका लेफ्ट इधर होगा। वहीं जो लोग साउथ में फेस कर रहे हैं उनका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। अगर किसी को भी राइट लेफ्ट को लेकर जरा सा भी कंफ्यूजन होता है, प्लीज मेक श्योर पहले से लिख लो कि लेफ्ट किधर है, राइट किधर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे स्टार्ट करना है, पहली स्टेटमेंट अपने आप में कंफर्टेबल लग रही है। देयर आर ओनली 2 पीपल हु आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। एक तरह से मुझे जी की पोजीशन डिफाइंड है। अगर बेटे मैं ध्यान से देखूं तो एक पॉसिबिलिटी कि जी इधर है, कहां फेस करेगा, नॉर्थ में, सो दैट देयर आर ओनली 2 पीपल टू हिज लेफ्ट। बट had G been facing south, so definitely there will be 2 people on his left here. So अगर मैंने इससे स्टेटमेंट से क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे पता है बेटे जी की आगे रेफरेंस यहाँ पे है, वो बी से लिंक हो जाएगा, बी से आगे ई लिंक हो रहा है, ए लिंक हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि बेटे मेरे को जी बी ए की पोजीशन डिफाइन हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो लास्ट में जाके फिर से रेफरेंस दिया हुआ है ई और बी का। तो बेटा अगर मैं क्वेश्चन को समझना चाहूं तो अगर मैंने जी से लिंक बी को कर लिया, बी से ए लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे ई दिया हुआ है नॉर्थ में फेस कर रहा है एंड बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। मुझे सारी स्टेटमेंट्स आपस में लिंक करनी है। थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए अननेसेसरी केसेस नहीं बनाने हैं, लिंक ढूंढने हैं। अब ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जी एंड बी। इस तरफ तो 2 बीच में नहीं बैठ सकते, तो बी यहां पे होगा। इस केस में बी यहां पे होगा। परफेक्ट। नाउ ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। इसमें बेटे इधर पॉसिबल नहीं है, इस तरफ ए नहीं हो सकता, सो ए इस तरफ होगा। ये बी का लेफ्ट कैसे होगा, बी मस्ट बी फेसिंग नॉर्थ। सेकंड पॉसिबिलिटीज में यहां ए होगा और ये बी, ए बी का लेफ्ट होना चाहिए, मतलब बी कहां देख रहा है, साउथ में। फिर बेटे लास्ट स्टेटमेंट में जा रहा हूं, बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। आइडियली बेटे अगर बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है तो बेटा ई पक्का नॉर्थ में है। अगर ई नॉर्थ में है और बी उसका लेफ्ट है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट केस में ई यहां आएगा और बी उसके लेफ्ट में है। सेकंड केस में बेटे ई यहां पे आएगा क्योंकि ई पक्का नॉर्थ में देख रहा है और बी उसके लेफ्ट में है। तो सबसे पहले हमने जी, बी, ए और ई की स्टेटमेंट्स को लिख लिया। अब वो कहते हैं ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। सो बेटे इस केस में सी यहां आएगा और सेकंड केस में सी यहां आएगा। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब बेटे इस केस में देखो सी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे एफ पॉसिबल है
एंड सी का लेफ्ट होना चाहिए। सी का लेफ्ट कैसे होगा? सी नॉर्थ में देख रहे हैं। इस केस में 1 2 3 ये केस पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि सी के 3 प्लेसेस इधर ई है। ये केस बेटे यहीं पे रिजेक्ट हो गया। सो मुझे पता है जो बच गया हैज टू बी डी। अब सिर्फ डायरेक्शंस देखनी थी। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेसेस द सेम डायरेक्शन। सी का अगर एक नेबर जी है तो दूसरा डी है, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ए फेसेस द सेम डायरेक्शन एट सी, मतलब ए नीचे की तरफ देखेगा। ठीक है। और एक स्टेटमेंट हमने शायद मिस कर दी है, कहीं पे एफ की कुछ होगी। The immediate neighbor of A faces opposite direction. So A के जो immediate neighbors हैं वो opposite direction में है। Everybody try to look at the question. Angadi and Vaishnavi had the correct answer initially. Good. बाकी सब बेटे देखो हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। We need to probably get these answers in 3 to 4 minutes. तो जहां पर कुछ ऐसा आता है कि कुछ डायरेक्शन स्पेसिफाई की हुई हैं, पहले आइडेंटिफाई देयर लेफ्ट एंड राइट क्लियरली, और उसके बाद सेकंड स्टेप सिर्फ ये होता है कि आपको स्टेटमेंट्स के लिंक बनाने हैं। तो जब मैं स्टेटमेंट्स के लिंक बना रहा था मुझे पता है अगर यहां से जी है तो जी बी से लिंक हो रहा है, बी ए से लिंक हो रहा है, और बेटे ए को फिर हमने सी से लिंक कर लिया, और नीचे में हमने देखा तो बी के साथ हमने ई को लिंक कर लिया। इससे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इजी हो गया। So this is the kind of question that practically you could be expecting in your pre. मेंस में ऑब्वियसली से थोड़े से टफ आते हैं, बट प्री में इस तरह के क्वेश्चन है अपना would be followed by 5 questions. So ideal time of solving this puzzle should be 2 to 3 minutes and then 1 minute more for answering the question. So average on average 4 minutes में मुझे इस पजल को सॉल्व करना है बेटे। कंफर्टेबल? एक और एग्जांपल करते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास प्री में दिखती हैं। सर्कल या स्क्वायर में इनसाइड आउटसाइड है। ट्राई टू सॉल्व दिस पजल एवरीबॉडी। कुछ इसमें भी समझाऊंगा कि किस तरह से हैंडल करना है, बट एक बारी ध्यान से देखो। इट इज गिवन दैट देयर आर 8 पीपल एंड दे आर 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड द अदर 4 आर फेसिंग इनसाइड। और फिर बेटे मुझे कहा हुआ है कुछ स्टेटमेंट्स में कि कौन किसके कितने प्लेसेस राइट पे कहां लेफ्ट पे है, एंड यू हैव टू फिगर आउट देयर पोजीशंस। अच्छा बेटे देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्या होता है, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि जब हम किसी भी केस में इनसाइड आउटसाइड देख रहे हैं, सबसे पहले ये समझो कि जो लोग इनसाइड देख रहे हैं उनका राइट एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट क्लॉकवाइज है। अगर आप इस पोजीशन को अपने आप से रिलेट करो, अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हो तो बेटे आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। वहीं अगर कोई आउटसाइड फेस कर रहा है तो उसका बेटे राइट क्लॉकवाइज होगा और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा। नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इनिशियली। कभी भी इनसाइड आउटसाइड का क्वेश्चन कर रहे हो,
आपको क्लियर होना चाहिए कि बेटे आपका जो राइट है, जो इनसाइड फेस कर रहे हैं उनका राइट वुड गो एंटी क्लॉकवाइज, वहीं जो लोग बच्चे आउटसाइड फेस कर रहे हैं उनका राइट इस तरफ होना चाहिए। सबसे पहले राइट लेफ्ट इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब बेटे उसके बाद लिंक्स बनाने जरूरी हैं। पहले केस में देखो, इट इज गिवन दैट E faces outside, H sits second to the right of E and B sits third to the left of E. तो अगर मैं E से स्टार्ट कर लूं तो आई वुड बी एबल टू फिगर आउट द पोजीशन फॉर B एंड H। फिर उसके बाद फायदा क्या है, देखो B sits third to the right of H दिया हुआ है, सो बेटे इससे BH का बहुत क्लियर हो जाएगा। कंफर्टेबल? सो अगर मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो शायद मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। फाइन, गुड वैष्णवी। सो अगर मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करना है बेटे, तो मैंने एक टेबल ले लिया, अब सर्कल है तो कहीं से भी स्टार्ट करो, फर्क नहीं पड़ता है। सो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए कह रहा हूं E faces outside। सो अगर आपका लगता है तो यहाँ पे E ले लो और मान लिया ये कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड। नाउ बोथ द नेबर्स ऑफ E faces इनसाइड, तो ये भी बेटे इनसाइड फेस करेगा, ये भी इनसाइड फेस करेगा। H sits second to the right of E needs to be very clear, क्योंकि वो आउटसाइड फेस कर रहा है तो उसका राइट इधर होगा। परफेक्ट। एंड B sits third to the left of E। अब बेटे सो सॉरी, E आउटसाइड फेस कर रहा था तो उसका राइट इधर हो जाएगा, और B थर्ड टू द लेफ्ट इधर हो जाएगा। जो आउटसाइड फेस कर रहा है उसका राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। ठीक है, E was facing outside, as E was facing outside, so उसका जो राइट है बेटे वो क्लॉकवाइज जाएगा। H बच्चे इस पोजीशन पे आ गया, B इस पोजीशन पे आ गया। फिर नीचे दिया हुआ था B sits third to the right of H। अब बेटे ये H का राइट इस तरफ कैसे आएगा, अगेन H हैज टू फेस आउटसाइड। तो ये क्लियर हो गया कि E और H पक्का आउटसाइड देख रहे हैं। अब बेटे उसके बाद ध्यान से देखो तो सबसे कॉमन नेम जो है वो D है। D faces center, F is an immediate neighbor of D and D is not an immediate neighbor of B who faces outside। B भी आउटसाइड देख रहे हैं। D बेटे इन दो पोजीशंस पे नहीं आ सकता, और कहा हुआ है कि D has to be an immediate neighbor of F। अब D इसका मतलब इस पोजीशन पे भी नहीं आ सकता क्योंकि वो F का नेबर नहीं हो सकता। तो D बेटे अगर यहाँ पे होगा तो F यहाँ पे होगा, या फिर एक सेकंड पॉसिबिलिटी इसका मतलब मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, D बच्चे मेरे पास दूसरी पोजीशन पे भी आ सकता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसमें अब दो पॉसिबिलिटीज बन गई। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन गई कि बेटे E यहाँ पे था, मुझे पास D यहाँ हो सकता है और मेरे पास F यहाँ पे हो सकता है। दिस हैज टू बी B, दिस हैज टू बी H। ये आउटसाइड है बेटे, ये भी आउटसाइड है, एंड दिस E आल्सो वाज आउटसाइड। सो सॉरी, ये बेटे मुझे दिया हुआ E के जो नेबर्स हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब D के बारे में बेटा मुझे क्या कहा हुआ था, ध्यान से अगर मैं देखें तो, सो सॉरी, हमें दिया हुआ था बेटे D is not an immediate neighbor of B who faces outside। D खुद सेंटर में देख रहा है, D has to face center and both his neighbors are facing outside, that means F has to face outside। इस केस में बेटे अगेन F has to face outside। फिर बच्चे दिया हुआ था G sits second to the left of A। अब बेटे यहाँ पे जो G और A बचे हुए हैं वो ये वाली दो पोजीशन ही बची हुई हैं। फाइन, F is not an immediate neighbor of D, so sorry, C is not an immediate neighbor of G। अब बेटे C G के साथ नहीं आ सकता, और मुझे क्लियर है कि यहाँ पे जो G था दैट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। अब बेटे एक चीज क्लियर होगी कि जो C है अगर वो G का नेबर नहीं होना चाहिए, सो सॉरी आई एम मिसिंग आउट, मस्ट बी अ स्टेटमेंट। E faces outside, H B हो गया, D faces the center, G sits second to the left of A, B sits third to the right of F, F is an immediate neighbor of D, sorry C is an immediate neighbor of G। इसका मतलब G यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा और A यहाँ पे होगा, क्योंकि A के टू प्लेसेस लेफ्ट पे G है। ठीक है, G sits second to the left of A। अब बेटे अगर ये इनसाइड फेस कर रहा है तो ये केस गलत हो जाएगा, ये टू प्लेसेस राइट पे हो गया।
बेटे जी और सी नेबर से इकट्ठे थे और इस केस में जी ए के 2 प्लेसेस राइट पे आ गया। अगर ए इनसाइड देख रहे हैं तो दिस हैज टू बी राइट। इसका मतलब बेटे वैलिड केस ये वाला होगा। इसमें ध्यान से देखो, ए यहाँ पे होगा, जी यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा। क्योंकि ये इनसाइड देख रहे हैं तो उसका लेफ्ट इस तरफ वैलिड हो गया। What I else wanted was there has to be 4 outside and 4 inside. This is the one who is facing outside. एक H है, एक F है, एक बच्चे मुझे पता है B था और एक मुझे पता है E था। तो rest all has to face inside. So बेटे inside outside वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। एक बारी ध्यान से देखो बच्चे सारे। डेफिनेटली जब आप क्लासेस में होगे तो हम इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आज टाइम कम है तो बहुत ज्यादा उसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, बट थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग को समझनी थी बच्चे कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को देखेंगे, हमारा फॉर्मेट क्या होगा, हम इनसाइड आउटसाइड आइडेंटिफाई कर लेंगे। कंफर्टेबल? आई विल बी डूइंग जस्ट वन मोर सेट। एक और कॉमन फॉर्मेट्स है जो हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है? एंड देन आई विल बी वाइंडिंग अप द सेशन। डेफिनेटली वुड बी एक्सपेक्टिंग यू टू लर्न मोर। Come with your classes, take more topic test, take mock test, and then come with the doubts. Fine? एक और क्वेश्चन जस्ट टू वाइंड अप द क्लास। एक टॉपिक और होता है कॉम्बिनेशन बेस्ड, हम उसे क्वेश्चंस कहते हैं। जल्दी से क्वेश्चन करके देखो, ये भी एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है पीओ का। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सो आई विल वाइंड अप इन नेक्स्ट 4 to 5 minutes. अच्छा बेटे, अंडरस्टैंडिंग द लिमिट ऑफ टाइम, मैं एक बार समझा रहा हूँ। ऑब्वियसली यू कैन रीट्राई, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, इफ यू वांट टू, एंड यू कैन रीट्राई इट आफ्टरवर्ड्स। एक छोटा सा फॉर्मेट समझ लेना बच्चे। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर कुछ ऐसा कहा होता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये स्टेट का हो सकता है, ही कैन स्पीक दिस लैंग्वेज, ही पास्ड इन दिस सब्जेक्ट और फेल्ड, इसमें हमेशा बेटर क्या होता है, इट इज मोर ऑफ अ टेबल फॉर्मेशन क्वेश्चन, डाटा अरेंजमेंट क्वेश्चन इसे बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स बोल सकते हो। बट इनको करने का हमेशा जो बेटर लॉजिक होता है, दैट इज टेबल फॉर्मेशन, ठीक है? अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है कि देयर आर सर्टेन पीपल, उनकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ लैंग्वेजेस हैं, कोई किसी पर्टिकुलर डे पे कुछ आता है जिसमें पॉसिबिलिटीज हैं, सो आई वुड प्रेफर यू टू ड्रॉ फॉर्मेट। मैं उसको रोज और कॉलम्स में इस तरह से अरेंज कर दूंगा। एक तरफ मैंने ABCDF लिख लिया, the other way I've written Hindi, social science, math, science and English the subjects given. अब इससे नॉर्मली क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग आसान हो जाएगी। हम लोग करेंगे क्या बच्चे, इसमें हम लोग क्रॉसेस और टिक्स लगाएंगे, क्योंकि पास और फेल की बात हो रही है। सो वी प्रोबेबली वुड सिग्निफाइज अ टिक फॉर अ पास एंड अ क्रॉस फॉर अ फेल। किस तरह से क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा, वी अंडरस्टैंड कोई एक है जो सब में पास है लेकिन कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तो स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, इट सेज ए पास्ड इन हिंदी, सो बेटे मैं ए में टिक लगा लेता हूं, मतलब वो पास है। बाकियों में मुझे क्लियर नहीं है, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। बी फेल्ड इन सोशल साइंस, सी पास्ड इन मैथ्स, डी पास्ड इन साइंस एंड ई फेल्ड इन इंग्लिश। बट ऑब्वियसली इट इज वेरी इनकम्प्लीट एट दिस स्पॉट, बिकॉज बाकी कौन किस में पास है कौन किस में फेल है वो कुछ क्लियर नहीं है। तो ऑब्वियसली वी नीड टू मूव वन स्टेप अहेड। It says minimum number of students passed in maths. maths में बाकियों से कम होने चाहिए, मिनिमम है।
2 passed in Hindi, exact equal number of students, that is 3 passed in science and social science. This is the initial information that seems to me. अब इसमें से देखो बेटे, सबसे पहली चीज बहुत ऑब्वियस रीजनिंग है कि मैथ्स में मिनिमम है, मतलब हिंदी 2 है, उससे कम होगा, 0 नहीं हो सकता, बिकॉज दिया हुआ सी मैथ्स में पास है, तो विल डेफिनेटली वुड सेज देयर हैज टू बी ओनली वन हु पास्ड इन मैथ्स, वो वन जो है वो सी है, दैट मींस रेस्ट ऑल हैज टू फेल इन मैथ्स। तो इस तरह से हमें कुछ चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम पहली चीज क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेटे वो जो एक पास हो रहा है, कोई एक ही पास होगा, और वो जो एक पास हो रहा है वो डेफिनेटली सी है। स्टिल वी हैव टू आइडेंटिफाई 2 फॉर हिंदी, 3 फॉर सोशल साइंस एंड 3 फॉर साइंस, वो क्लियर नहीं है। तो ऊपर में पैराग्राफ में जब वापस जा रहा हूं तो देखो ध्यान से दिया क्या हुआ था, वन ऑफ देम पास्ड इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स, कोई एक है जो सब में पास है। अब बेटे वो जो सब में पास है वो डेफिनेटली सी है, बिकॉज रेस्ट ऑल हैज फेल्ड इन मैथ्स, सो वी कुड बी वेरी क्लियर, जो सब में पास है वो डेफिनेटली सी है। आई होप ये पॉइंट सबको समझ आया। कोई एक था जो सब में पास था बेटे, बाकी सब मैथ्स में फेल थे, तो वो जो सब में पास है वो डेफिनेटली सिर्फ सी हो सकता है। इससे बेटे फायदा क्या हुआ, हिंदी के 2 मिल गए, सो आई डेफिनेटली वुड एलिमिनेट अदर्स, रेस्ट ऑल हैज टू फेल इन हिंदी। कंफर्टेबल? टेबल फॉर्मेशंस इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। Then it says one failed in all subjects, कोई एक सब में फेल है, अभी के लिए वो बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, कोई श्योर नहीं है। आगे मूव करूंगा। वन ऑफ देम पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, वो भी श्योर नहीं है। वन फेल्ड इन एग्जैक्टली वन, कोई एक ऐसा है जो सिर्फ एक ही में फेल हो रहा है, ध्यान से देखो बेटे, वन फेल्ड इन एग्जैक्टली वन। कैन यू लुक एट द टेबल एंड आइडेंटिफाई, सिर्फ ए ऐसा है जो एक ही में फेल हो सकता है, बाकी सब कम से कम 2 में फेल हैं, so the one who failed in exactly one has to be A। परफेक्ट है। अब मुझे क्लियर हो गया कि ये एक ही में फेल है, इससे फिर से फायदा क्या हो, मुझे साइंस के 3 मिल गए, सो वी कैन एलिमिनेट अदर्स। सो ये वेरी क्लियर, साइंस के 3 मिल गए हैं, and the other 2 passed in exactly 2 subjects each। अब ध्यान से देखो बेटे, कोई ऐसे 2 हैं जो 2 सब्जेक्ट्स में पास होंगे। We have clearly identified A has passed in 4 subjects, C has passed in 5 subjects, B के ऑलरेडी 4 क्रॉसेस हैं, वो 4 सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो सकता, E के भी 4 क्रॉसेस हैं, वो भी 2 सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली जो 2 सब्जेक्ट्स में पास होंगे वो एक D होगा और एक F होगा। कंफर्टेबल? सो D and F would be the one who gets passed in exactly 2 subjects। इसका मतलब F का यहाँ पास होना जरूरी है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे मेरे पास साइंस के भी मिल गए, सो यहाँ क्रॉसेस आ जाएंगे। ई इसका मतलब किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहा, एंड इट वाज क्लियर, किसी एक ने सिर्फ बेटे एक ही सब्जेक्ट में पास होना है, वन पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। सो जो एक ही सब्जेक्ट में पास हो रहा है वो बेटे डेफिनेटली डी के, सॉरी 2 यहाँ पूरे हो गए, वो जो एक ही सब्जेक्ट में पास होगा दैट हैज टू बी बी। एक बारी बेटे इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन ट्राई इट योर ओन एंड अंडरस्टैंड कि इस तरह की पजल्स अगर मेरे पास आ रही हैं तो मैं उसको कैसे टारगेट करूंगा। आई होप बेटे सबको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आया। दैट वाज ओनली अ काइंड ऑफ एग्जांपल्स एंड आई वांटेड टू गिव यू काइंड ऑफ एन इनसाइट कि आप पेपर में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली दैट इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। किसी भी चीज का बेटे एज सच कोई शॉर्टकट नहीं है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली कुछ ट्रिक्स हैं जो हमें सीखनी है, हमें फॉर्मेट समझने हैं, एंड देन वी हैव टू प्रैक्टिस इट एंड देन अप्लाई फॉर इट। कंफर्टेबल? I hope beta you have got an idea of what kind of preparation you are looking forward for your pre-examination. Any question from your side? Definitely I am here to answer that. Anybody who needs to ask me anything? Comfortable everybody? Good. Thank you so much Karina, Dimple and everybody for your patience and for your time.
सर वाइंड अप करने से पहले वो फ्लोर्स वाला क्वेश्चन शेयर कर देना जिसमें डॉक्टर डेफिनेटली बेटे आई एम डूइंग दैट. अंगदी बेटे हाउ मेनी मॉक्स? आई वुड बिलीव एटलीस्ट 10 मॉक्स, मिनिमम ऑफ 10 मॉक्स, बिकॉज पहले कुछ मॉक्स में आपकी स्पीड बिल्ड नहीं होती है, आप स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाते हो. ठीक है, so take at least 10 mocks before the actual paper. And I one thing more that I want to definitely stress, जब आप मॉक देते हो सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, उसका प्रॉपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू गो फॉर इट कि आपने किस क्या क्या गलतियां की, आपने कौन सा वर्ड गलत पढ़ा, कहाँ पे चॉइस ऑफ क्वेश्चन गलत था, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जहां पर टाइम ज्यादा स्पेंड हो गया. अगर आप करेल लॉन्चर के मॉक्स देखोगे ना तो उसमें जब एनालिसिस आता है, so we'll pinpoint your time allocated to every question also. That is very important to understand. मैंने अपना टाइम वेस्ट कहाँ किया. ठीक है बच्चे, सो प्लीज कुछ मॉक सीरीज को फॉलो करो. करेल लॉन्चर आपको एक पूरी कंप्लीट मॉक सीरीज देता है, उसमें प्रॉपर एनालिसिस करो. एक मॉक दिया है, spend at least 3 times of the time of mock for analysis. Definitely would be very helpful. Thank you for the acknowledgement, Anjali, Vaishnavi, and everybody. I forgot the name. Somebody asked me for that questions ka screenshot. So I'm giving you the questions here. You can take a screenshot. I'm giving 2 minutes for every question. So this was the first set of question. If anybody wants to take a screenshot, can take a screenshot. I hope you have taken the screenshot. And these are the answers. First का answer D था, second का C था, third का B था. Then this was the question on rooms with directions. Fine, probably have taken the screenshot. This was the question with flows and dentist and doctor. I hope it's okay बेटे. ठीक है, चलो. Thank you so much for the day. I'm going to wind up this session now. We'll be definitely coming up with more sessions in the coming weeks. And I would say all the wishes for the Diwali, the festival season that is coming up. Hope everything goes well in our country and everybody would be fine. Thank you so much for the day and all the best wishes to each of you. Happy Diwali, Sopen. Thank you so much and all the best for your life. Thank you so much.